اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی تسبیح بیان کروں گا جو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں بے حد لاڈلی تسبیح ہے اور انتہائی آسان ذکر ہے کہ جسے نہ صرف بڑے بلکہ چھوٹے بچے بھی کر سکتے ہیں اور ہر حالت میں کر سکتے ہیں۔ یہ ایسی خیر و برکت والی تسبیح ہے کہ اس کو پڑھنے سے انشاءاللہ ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر دکھ، ہر تکلیف دور ہو جاتی ہے اور انسان کی ہر حاجت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری ہو جاتی ہے۔ اور اس تسبیح کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اور بے شمار احادیث میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں بیان کیا ہے۔ آپ دن اور رات میں کسی بھی وقت اس کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے۔ اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے اور اس کو کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ ایک بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ کرنا، کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات اوپر متعین ہوتے ہیں۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے۔ بس ہمیشہ عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیشہ اللہ رب العزت پر توقع رکھیں اور اس کی ذات پر ایمان رکھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے بہت برگزیدہ بندے تھے۔ یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا اور ان کا نام آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے فلاں مسئلہ ہے اور میں بے حد پریشان ہوں۔ تو اس کی بات سن کے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ فرمانے لگے، استغفار کیا کرو۔ کچھ دیر بعد ایک اور شخص حاضر ہوا اور اس نے بھی اپنا کوئی مسئلہ بیان کیا تو آپ نے کہا کہ استغفار کیا کرو۔ پھر ایک تیسرا شخص حاضر ہوا اور اپنی پریشانی اور مصیبت کا حل دریافت کیا تو آپ نے اس سے بھی کہا کہ استغفار کیا کرو۔ تو قریب بیٹھا ہوا ایک شخص جو یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کافی حیران ہوا اور کہنے لگا، حضرت آپ کے پاس جو بھی اپنا مسئلہ لے کر آتا ہے آپ اسے ایک ہی عمل بتاتے ہیں کہ استغفار کیا کرو، حالانکہ ان تینوں کے مسئلے الگ الگ نوعیت کے تھے، یعنی ان تینوں نے اپنی پریشانیاں علیحدہ علیحدہ بیان کی۔ تو اس شخص کی بات سن کے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ کہنے لگے، کیا تم نے سورہ نور نہیں پڑھی؟ سورہ 9 قرآن پاک کے 29ویں پارے کی زینت ہے، اگر ہو سکے تو اس کو اپنی اپنی زبانوں میں ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھے گا۔ تو سورہ 9 میں کیا آتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کیا فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں استغفار کرو، اللہ اولاد بھی دے گا، استغفار کرو، اللہ مال دے گا، اللہ تعالیٰ رزق دے گا، اللہ تعالیٰ کھیت دے گا، باغات دے گا اور بارشیں برسائے گا۔ لہٰذا ہر مسئلے کا حل تو استغفار ہے، لہٰذا اسی لیے میں نے سب کو استغفار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، استغفار کرنا دراصل اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرنا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، جب اللہ کے ساتھ بندے کا معاملہ درست ہو جائے تو ہر مسئلہ خود بخود حل ہونے لگتا ہے۔ لوگ آپ کو دکھ دیں گے اور جان لو کہ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کس کو دکھ دیا گیا ہے؟ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ دے سکتے ہیں، یعنی یہ ایک بہترین اخلاق کے حامل اور سچے ترین صادق و امین کو دکھ دیا جا سکتا ہے، تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں اور ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ ہمیں بھی لوگ دکھ دیں گے، اپنے بھی دکھ دیں گے، بیگانے بھی دکھ دیں گے، ہو سکتا ہے کام پر موجود ہمارے دوسرے ساتھی ہی ہمیں پریشان کریں، لیکن یاد رکھیے گا کہ دکھ تکلیفیں نبیوں کی میراث ہیں، اور اگر دکھ اور غم اچھے نہ ہوتے تو کبھی نبیوں اور پیغمبروں پر نہ آتے۔
तकरीबन हर नबी गम से गुजरा है और हर नबी दुखों से गुजरा है, हर नबी मुश्किलात का शिकार रहा है। और कोशिश करें मेरे अजीजों, इनसे कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि जितनी भी मुश्किलातें और परेशानी है ये इंसान के दर्जात की बुलंदी का सबब बनती है। मेरे अजीजों, रोजमर्रा जिंदगी में हमसे बहुत सारे गुनाह सरजद हो जाते हैं और फिर ये अल्लाह ताला का हम पर करम है और फजल है कि वो दुखों और गमों की सूरत में उनका कफारा यहीं पर अदा करवा लेता है। इंसान पर अल्लाह ताला मुख्तलिफ तरीकों से अपनी रहमत और अपना फजल फरमाता है और इनमें दुख और तकालीफ भी शामिल होते हैं, लेकिन फिर फायदा ये होता है कि क़यामत वाले दिन इंसान बिल्कुल पाक और साफ होकर अपने अल्लाह के हुजूर पेश होता है। हदीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं कि क़यामत वाले दिन कुछ लोग बिल्कुल साफ शफाफ होकर आएंगे और उनका अमालनामा बिल्कुल साफ सुथरा होगा और कहा जाएगा कि ये वो लोग हैं कि जिनको दुनिया में बड़ी बड़ी मुसीबतों और तकलीफों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन लोगों ने इन मुसीबतों और तकलीफों पर अल्लाह के फजल से सब्र किया और आज उसके नतीजे में क़यामत वाले दिन इनके अमाल में कोई गुनाह भी नहीं है, यानी इनके अमाल नामों में सिर्फ अच्छाइयां ही अच्छाइयां हैं। लिहाजा बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों को बिशारत देता है और फरमाता है कि तुम्हें फरिश्तों की जानब से सलाम किया जाएगा और खुद अल्लाह ताला अपने ऐसे बंदों पर सलाम भेजता है। और जान लीजिए कि कुरान पाक में सब्र का लफ्ज तकरीबन 100 बार आया है और जन्नतियों की सबसे बड़ी खूबी सब्र ही है कि ये सब्र किया करते थे, यानी गम पर सब्र, बुरे रवैयों पर सब्र। और सब्र का मतलब यह है कि बर्दाश्त कर लिया करते थे, लड़ाई नहीं की और बिला वजह किसी के साथ झगड़ा नहीं किया, अपने गुस्से को पी गए और गुस्से को पी जाने वाले ही दरअसल अल्लाह ताला को बेहद पसंद है। मेरे अजीजों, एक हदीस मुबारक है जिसका मफहूम कुछ यूं है, और जब भी आपको कोई मुश्किल, कोई तकलीफ या कोई भी मसला दरपेश हो तो इस हदीस मुबारक को अपने सामने जरूर रखिएगा, इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत फायदा हासिल होगा। जान लीजिए कि उमर बिन आस नहायत ही जय्यद और बरगज़ीदा सहाबी गुजरे हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में मिस्र के गवर्नर रहे हैं। तो किसी सहाबी ने हजरत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना था कि क़यामत के नजदीक रूमी गुलबा पा जाएंगे, और आज के हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं। रूमी यानी ईसाई लोग आजकल काफी गुलबा पा चुके हैं। तो हजरत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराए और कहने लगे कि मुझे इस बात की समझ है कि ये क्यों गुलबा पा जाएंगे। वो सहाबी बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, क्या आपको कैसे मालूम है कि वो कैसे गलबा पाएंगे? तो हजरत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैंने इन लोगों पर हुकूमत की है और मैं आपको इनकी 5 बातें बताता हूँ, यानी मैं आपको इनकी 5 खुसूसियत बयान करता हूँ कि जिनके सबब ये लोग गलबा पा जाएंगे। इनकी पहली खूबी ये है कि जब भी इन पर कोई मुश्किल आती है तो एक दफा घबराते तो जरूर है, लेकिन अपना मुहासबा कर लेते हैं कि वो मुश्किल क्यों आई है। किस्मत को कोसते नहीं रहते कि हाय मैं मर गया, हाय मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। नहीं, ये घबराए जरूर थे, लेकिन फिर सोचते हैं कि ये मुसीबत क्यों आई थी, क्या ये मेरे किसी रवैये की वजह से थी और कहीं मुझसे ही कोई खता तो सरजद नहीं हुई। लिहाजा जब भी इन पर कोई भी मुसीबत नाजिल होती है तो सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई, यानी सबसे पहले अपने आप पर उंगली होनी चाहिए, फिर किसी दूसरे की जानब, और ये बावर कर लेना चाहिए कि कहीं मैंने किसी गलत आदमी को तो अपना दोस्त तो नहीं बना लिया था, या मैंने कोई गलत आदत, कोई बुरी आदत तो नहीं अपना ली, या मैंने जिंदगी में अपना राज किसी गलत आदमी को तो नहीं दे दिया। लिहाजा रोमन यानी ईसाई सबसे पहले उस मुश्किल के बारे में ये सोचते हैं कि ये मुश्किल आई ही क्यों। मेरे अजीजों, सही मुस्लिम की हदीस बयान कर रहे हैं कि रोमन की दूसरी खूबी ये है कि जब भी उन पर कोई आफत, कोई मुसीबत नाजिल होती है या उन्हें कोई ठोकर पड़ती है तो इस सिलसिले में उनकी सलाहियत बहुत बेहतर है, यानी वो बुरे हालात में फंसने के बावजूद भी अपने आप को बेहतर कर लेते हैं। तो इसकी एक सिंपल सी मिसाल मैं आपको बयान करता हूँ कि अगर एक बंदा कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहा है तो वो फेल हो जाए
तो बजाय अपनी किस्मत पर मातम करने या दूसरों के साथ गिला शिकवा करने के वो अपनी कमी कुताही को दूर करने की कोशिश करे, ताकि अगली बार वो अपने उस इंटरव्यू में काम हो सके। और इसी को कहते हैं कि बुरे हालात में अपने आप को संभालना, अपने आप को पुरएतमाद बनाना। तो उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया कि तीसरी खूबी इनकी ये है कि जब ये देखते हैं कि जंग में शिकस्त हो रही है तो उसी वक्त अपनी हार तस्लीम करके भाग जाते हैं, लेकिन फिर हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते और दोबारा हमला करने के लिए पहले से बेहतर और ताकत पकड़ते हैं। और ये भी एक अक्लमंदी और दनाई होती है। जैसा कि एक बार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह भी जंग से जंग किए बगैर ही वापस पलट आए थे, और फिर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैंने हालात का जायजा लिया था और हालात बिल्कुल हमारी फौज के खिलाफ थे। और फिर ईसाई बादशाह ने भी हमें यह ऑफर भी दी थी कि अगर अभी पलट जाओगे तो बच जाओगे, वरना सब के सब मारे जाओगे। लिहाजा मैंने ये मुनासिब समझा कि अपनी फौज को बेवकूफों की तरह मरवाने से बेहतर है कि हम दोबारा अच्छी तैयारी के साथ हमलावर हों, और यही अक्लमंदी भी है। लिहाजा उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक्त के रोमियों की ये खूबी बयान फरमाई कि ऐसा नहीं होता कि ये मैदान छोड़ के भाग जाए और फिर वापस ना आए, बल्कि ये दोबारा नए सिरे से तैयारी करके वापस आ जाते हैं। और चौथी खूबी उनकी ये है कि ये लोग सदका और खैरात वाले काम बहुत ज्यादा करते हैं, यानी दूसरों के काम आने वाले इमाल बहुत ज्यादा करते हैं। और फिर फरमाया कि इनकी पांचवी खूबी ये है कि ये लोग नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करते। तो देखिए कि जो हमारा शेवा होना चाहिए, जो चीजें हम में होनी चाहिए, वो सारी की सारी रोमियों में और ईसाइयों में मौजूद है, लेकिन हम अपनी गलतियों की वजह से उनसे महरूम हो चुके हैं। लेकिन अगर हम भी ये पांच खूबियां पैदा कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम भी जिंदगी में कभी मायूस और परेशान नहीं होंगे, और इंशाअल्लाह ताला अपने मुश्किल से मुश्किल हालात से भी जल्द बाहर निकल आएंगे। लेकिन इन सब खूबियों के साथ साथ जो शख्स हर वक्त अल्लाह ताला से तौबा इस्तगफार करता रहता है तो यकीनन अल्लाह ताला की मदद उसके हर हाल में शामिल हो जाती है, और यूं वो अल्लाह ताला का लाडला बन जाता है। मेरे अजीज भाइयों, इस आज वाली वीडियो में एक ऐसी शानदार तस्वीर और अमल मैं आपको बयान करूंगा कि ये तस्वीर अल्लाह ताला की लाडली तस्वीर है, और जो भी इन कलमात को पढ़ता है तो वो अल्लाह ताला का लाडला बन जाता है। और ये तस्वीर जब भी कोई शख्स पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस पर अपना खास करम और फजल नाज़िल फरमाता है, और अल्लाह ताला उस पर रहम फरमाता है। और ये तस्वीर अल्लाह ताला के यहाँ बहुत ज्यादा फजीलत वाली तस्वीर है। और ये तस्वीर जिस घर में भी कोई बहन, कोई बेटी, कोई भाई पढ़ता है तो वो घर अल्लाह ताला की नेमतों और रहमतों से माला माल हो जाता है। मेरे अजीज भाइयों, जो शख्स ये चाहता है कि उस पर अल्लाह ताला का खास करम और फजल हो और वो अल्लाह ताला का लाडला बन जाए और अल्लाह ताला के करीब हो जाए, तो ऐसे शख्स को चाहिए कि ये अजीम शान तस्वीर जरूर पढ़े, क्योंकि इस तस्वीर की बदौलत अल्लाह ताला ऐसे शख्स के रिज़्क में बेपनाह इजाफा और उस पर अपनी बरकतें नाज़िल करता है, और ये कलमात पढ़ने वाले की तमाम बीमारियां अल्लाह ताला खत्म कर देते हैं। और ऐसे शख्स की अगर औलाद नहीं होगी तो अल्लाह ताला उसे औलाद भी अता फरमाएंगे, और अगर औलाद है तो अल्लाह ताला उसको नेक और फरमा बरदार बना देगा। मेरे अजीज भाइयों, बहनों और बच्चों, अब मैं आपको बयान करता हूँ कि वो अजीम तस्बीह क्या है। वो तस्बीह इस्तगफार की। इस्तगफार बहुत से आते हैं, इनमें से कोई सा भी जो आपको आता है वो इस्तगफार पढ़ ले। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। और इसके अलावा भी बहुत सारे इस्तगफार मौजूद हैं। अगर कोई भी ना आए तो इतना तो कह सकते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझे माफ कर दे। तो यकीन करें कि ये जुमला अल्लाह ताला को बेहद पसंद है। जब कोई बंदा इनकसारी से ये इतराफ करता है अपने गुनाहों का और अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करता है तो अल्लाह ताला बेहद खुश होता है, और अल्लाह ताला उस बंदे पर नाराज होता है जो गुनाह भी करे और फिर अल्लाह ताला से तौबा इस्तगफार भी ना करे, यानी अपने गुनाहों पर डटा रहे। मेरे अजीजों, हम गुनहगार हैं, स्याहकार हैं, लेकिन अगर हम अल्लाह ताला से माफी मांगते हैं, उसके हुजूर तौबा इस्तगफार करते हैं,
تو यकीन अल्लाह ताला हम सब के लिए अपने रहमत के दरवाजों को खोल देगा और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इतना अता फरमाएगा जो हमारे गुमा में भी नहीं होगा। तो जो मेरा भाई बहन अल्लाह ताला से करीब होना चाहता है, अल्लाह ताला का लाडला बनना चाहता है, तो वो इस्तिगफार को ज्यादा से ज्यादा पढ़ ले, बल्कि पढ़ ना ले, ज्यादा से ज्यादा इस्तिगफार कर ले, क्योंकि इस्तिगफार जुबान से नहीं दिल से होता है। और पूरे यकीन के साथ करें। और कुरान पाक में भी ये अल्फाज आते हैं कि जो अल्लाह ताला से डर गया, अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते भी निकालेगा और उसे ऐसी जगह से रिज़्क भी अता करेगा कि जो उसके वहमो गुमान में भी ना होगा। तो मेरे अजीज भाइयों, तो कोशिश करें कि इस इस्तिगफार को रोजाना 100 बार कर ले, 1000 बार कर ले, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कर ले। रोजाना की हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ ले। अगर कुछ भी ना हो सके तो रोजाना सिर्फ दिन में किसी भी वक्त एक तस्बीह ही पढ़ ले, यानी रोजाना दिन में सिर्फ 100 बार पढ़ ले। अल्लाह ताला से तौबा कर ले और आंखों को बंद करके अपना जहन इस हिसाब से करें कि मैं अल्लाह ताला के सामने हाजिर हूँ, जो पूरी कायनात का रब है, खालिक है, बनाने वाला है। तो मैं उसके हुजूर अपने गुनाहों से तौबा कर रहा हूँ। और फिर इस्तिगफार करें तो यकीन कीजिएगा कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला यकीनन आप पर, आपके घर वालों पर, आपके अज़ीज़ोकारों पर अपने रहमतों के दरवाजे खोल देगा। आखिर में दुआ है अल्लाह पाक आपको और मुझे, हम सब के गुनाहों को अपनी रहमत से माफ कर दे। हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। ए अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ कर दे। ए अल्लाह हम सब के गुनाहों को अपनी रहमत से माफ कर दे। ए अल्लाह हम सब के गुनाहों को अपने करम से माफ कर दे। आमीन सुम आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा सदका जारिया समझकर। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह एक नई वीडियो अमल के साथ। अल्लाह ताला आपका और आपकी फैमिली का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज।